Yung sawas? 이제 눈 나왔어요. Let's go here. Welcome, sir. Yang suka tak sini juga? Yang suka tak sini? Yang suka tak sini? Yeah, needs to reduce adoptable budgets of the cousin. May Lord explain for me with assurance and ease for me my task and understand my word, my speech. Today's Chief Guest, Honorable Lieutenant Governor Shri Ladakh, His Excellency Shri Kavinder Gupta Ji, Guest of Honor, Honorable CEC Chairman LHAC Kargil, Dr. Mohammed Jafar Apu, and Honorable Member of Parliament Shri Ladakh, Haji Hanifa Khan, Wati SSP Kargil, Shri Ram IPS, Additional Deputy Commissioner of Kargil, Imtiaz Hussain Kachu, President Jamiyat al-Ulama, Asna Shri Hujjatul Islam al-Muslimin, Sheikh Nazir al-Mahdi Muhammadi, distinguished doctors from Yafar Super Specialty Hospital, Noida Extension, Dr. Pawan Singh, Director, and Dr. Khalid Malik, Senior Consultant, Surgical Oncology, Yafar Specialty Hospital, Noida Extension, Captain Mohammed Hussain, Commander Boeing 77, respected Chief Medical Officer, District Hospital, District Kargil, Medical Superintendent, District Hospital Kargil, Senior Consultants, my colleague doctors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, Namaskar, Shure, and very, very warm welcome to one and all. And gratitude to witness such esteemed personalities among us in this inaugural ceremony of cancer screening and awareness camp by Al-Riza Healthcare and Research Foundation in collaboration with Yatharth Group Multi Specialty Hospital, Noida Extension NCR, New Delhi, and District Hospital Kargil. कुछ बात है कि हस्ती मरती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मरती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा, यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा. To commence this auspicious occasion, let's all rise for national anthem, a symbol of our unity and pride. Please stand up for your विनायक जय हे भारत भाग्य द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Let us all observe a moment of silence in his remembrance. Please stand up on your respective seat for the
Moment of silence silence. for 1 minute, please. And very dedicated. His services will remember for a long time. चिराग जिसने जलाया वो रोशनी दे गया, चिराग जिसने जलाया वो रोशनी दे गया, खुद तो चला गया मगर जिंदगी दे गया, खुद तो चला गया मगर जिंदगी दे गया. May Almighty bless his soul with eternal peace. इसके बाद मैं दावत देना चाहूंगी मौलाना शाकिरी कि वो यहाँ आके तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज करें. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين إذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. Serves as a tremendous source of motivation for all of us in the health sector. We are truly grateful you have taken the time to grace this occasion. We are equally delighted to welcome our guest of honor, Dr. Muhammad Jafar Akhund, Chief Executive Councillor, LHDC Kargil. Haji Hanifa Jan, Honorable Member of Parliament, UT Ladakh, Worthy Chief Secretary, Dr. Pawan Kotwal, UT Ladakh, Executive Councillors and Councillors, LHDC Kargil, our special guest, Worthy Deputy Commissioner, Shri Rakesh Kumar, Additional Deputy Commissioner, Dr. Imtiaz, SSP Kargil, Shri Ram and Hujjatul Islam wal Muslimin, President Jamatul Ulama Sharia Kargil, Sheikh Nazirul Mehdi Muhammadi. Your support and presence significantly amplify the impact of our mission today. I would like to warmly welcome cancer specialists and experts, Yatharth Super Speciality Hospital, Noida Extension, Delhi, led by Dr. Pawan Kumar Singh, Group Director, Hemato-Oncology and Bone Marrow Transplant, Dr. Kanuj Malik, Senior Consultant, Oncosurgery, Chief Medical Officer, our Medical Superintendent, District Officials, esteemed guests, medical colleagues, senior doctors, all volunteers of Al-Azhar Healthcare and Research Foundation Kargil. May Dr. Zohra, Vice President, Al-Azhar Healthcare and Research Foundation Kargil, जो कि हेल्थ विंग है, हमारे इस्लामिया स्कूल का, तो मैं आप सबको इस मौके पर दिल की गहराइयों से
खुश आमदीद कहती हूँ। I would request Janab Nazirul Mehdi to present our Honorable Chief Secretary Dr. Pawan Kotwal. Member of Parliament Shri Hanifa Jan. Please present shawl to Chief Member of Parliament Shri Hanifa Jan. Executive Councillor Dr. Jafar Akhon. ख्वाहिश से नहीं गिरता फल चोरी में. Now I would like to invite Honorable Chief Secretary UT Ladakh Dr. Pawan Kotwal ji to please come on the dais and enlighten the audience, please. Respectable Shri Sheikh Nazir ji, Deputy Commissioner Lake, SSP Lake, मेडिकल फ्रेटर्निटी से आए हुए डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स, यथार्थ फाउंडेशन से आए हुए डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, सर मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं और कुछ देर मैंने मेडिसिन भी प्रैक्टिस की है बिफोर आई रोट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 93। और मैंने अपनी जो हमारी जे&के रियासत उस वक्त थी उसका एक दूर दराज इलाका है भलेसा, वहां मैंने बहैसियत असिस्टेंट सर्जन काम किया और जो काम उस वक्त मैंने किया मेरे हाथों, जैसे कहा कि बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है, वो जो रहीम है वो जो बचाता है हमें, लेकिन उसका वो जो एक टूल होता है वो डॉक्टर होता है। तो कहते गॉड क्योर्स एंड द डॉक्टर अब्यूजेस। तो लेकिन आज भी मुझे वो जो पेशेंट मैंने ठीक किए, जो थोड़ी बहुत सर्जरी की, एक नौजवान था वो पहाड़ी पे बर्फ के दिन थे तो वो लकड़ी लाने जाते हैं, शतीरिया लाने जाते हैं, लॉग्स ऑफ वुड, तो वो एक स्लिप होके शतीरी बहुत भारी होती है, वो दूर से आई और उसकी टांग को लग गई, उसकी टांग के टुकड़े हुए, मल्टीपल फ्रैक्चर कंपाउंड। तो वो दूर गांव था, तो वहां से लोग आए मेरे पास, डॉक्टर साहब आप हैं तो चलिए वहां पे ऐसा हुआ है तो आप ठीक करिए उसे। मैंने कहा ये सर्जरी का मसला है, ऑर्थोपेडिक्स का मसला है, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, खैर बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी तो हूँ, सर्जरी तो मैंने सीखी है, लेकिन इतना मुश्किल काम उस कंपाउंड फ्रैक्चर को रिड्यूस करना, और तो उसके लिए तो पूरा एक ओटी चाहिए। लेकिन फिर भी वो लोग कहें, बर्फ के दिन थे, सड़कें बंद थी, रोड़ा जा नहीं सकते थे, तो वो कहने लगे जी जो भी हो अब आपको ये ठीक करना है, आप चलिए वरना वहां तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे मैं उस गांव में पहुंचा, काफी 3-4 घंटे चलने के बाद, तो देखा एक बहुत बड़ी छत के ऊपर लगभग कोई 50-60 वुमन और कोई 50-60 आदमी बैठे मेरा वेट कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने दूर से देखा मेरे साथ लोग थे, मैं आ रहा था, कहने लगे डॉक्टर साहब आगे, डॉक्टर साहब आगे। वो सब उठ गए, ऐसा लगा कि बस अब तो बस सारी प्रॉब्लम हल होगी। अब वो प्रेशर मेरे ऊपर आ गया कि ये 100-150 आदमी कह रहे हैं डॉक्टर साहब आगे, तो डॉक्टर साहब को क्या करें। मैं अंदर गया, मैंने सोचा था कि मैं जाके देखूंगा, उनको बोलूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको आप उठा के ले जाओ 30 किलोमीटर दूर ठाकरी, और ठाकरी से कारगिल। मैंने कहा मैं ये करूंगा, लेकिन जब उनका वो मैंने माहौल देखा, मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है अब यहाँ से निकलना। तो वहां पे जो लोकल एक होते हैं, जो फार्मासिस्ट टाइप कह सकते हैं, तो मैंने कहा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो नौजवान था, 20-22 साल का था, उसकी टांग भी इतनी मोटी, मसल इतने है, तो वो ऐसे निकला हुआ बाहर। लेकिन लकीली जो उसके पीछे सर ये होती है हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी इंटैक्ट थी।
तो मैंने कहा गैंग्रीन का इशू तो चलो शुक्र है नहीं होगा, ये तो इसका जो पाँव साइड पे पड़ा हुआ था, वो पाँव मुझे अलग हो चुका था। मैंने वो उसका रिडक्शन किया, मल्टीपल फ्रैक्चर था, मतलब मान लीजिए ऐसे रिडक्शन उसका किया, उसको जो मेरी पढ़ाई जितनी थी उतनी रिडक्शन की। और वहां पे मैंने देखा है गांव में वो शलफड़ी कहते हैं उसको, वो प्लैंक्स होते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस हैं, वो उसको रस्सी से बांधते हैं, तो उसका हमने फिर प्लास्टर तो था नहीं, वो शलफड़ी लगाई उसको और उसको ट्रीट किया। और मैं डॉक्टर था, मैं बाहर अपनी ओपीडी में 3 महीने बाद बैठा था, तो एक आदमी लग रहा था, वो आस्ता आस्ता नौजवान, उससे 2 आदमी कहते सर ये वो है जिसको आप वक्त के साथ साथ फिर वो ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर का दर्जा भगवान का होता है, और जब लोग मुश्किल में होते हैं तो उसके ऊपर बहुत यकीन होता है। जी डॉक्टर जाफर राहुल साहब, हमारे चीफ जुले नमस्कार। मैं सबसे पहले श्री ऑनरेबल एलजी साहब का, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का मैं बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और यथराज के हमारे डॉक्टर और उनकी पूरे टीम का मैं इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और पूरे करगिल के आवाम की तरफ से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक ऐसे इश्यूज के ऊपर, ऐसा एक सेक्टर को लेकर यहाँ पे ये जो कैंप का इनेकाद किया है, जो कि मैं समझता हूँ लद्दाख में आज की डेट में सबसे एक बहुत बड़ा एक गंभीर मसला है। पिछले 2-3 महीनों में मैंने खुद देखा है अपने रिलेटिव्स में। तो मैं समझता हूँ ये एक दिन का जो कैंप है, और मैं खुशी की बात यह भी है कि मैंने सोच रहा था कि ये एक दिन का कैंप है, जो स्क्रीनिंग कैंप है, लेकिन कल जिस तरीके से हमारे अरजा के ऑफिस में जो स्टेलाइट क्लिनिक का जो इनकाद किया, वहाँ पे हमें बताया गया कि इसमें स्टेलाइट के जरिए यथार्थ हॉस्पिटल के जो माहिर डॉक्टर्स है उनके साथ बैठ के यहाँ पे जो है लोगों को कंसल्ट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब शेख नाज़िर मेहदी साहब, अरजा की पूरे टीम और यथार्थ हॉस्पिटल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ खासकर जो कैंसर का जो स्क्रीनिंग है, ये सर ये एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के भी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम रेशियो देखा जाए तो ये पूरा देश में मुझे लगता है सबसे बड़ा गंभीर मसला आज लद्दाख में बने हुए हैं। क्योंकि मैंने ये झेला है पिछले 3 महीनों में, मेरे अपने रिलेटिव्स में ऐसे 3 शख्सियत थे जो नॉर्मल टेस्ट के लिए गए थे कश्मीर, और वहां से वापस आए, उनको कैंसर डिटेक्ट होते। तो इस तरह के बहुत सारे केस है। इसलिए ये स्क्रीनिंग वाला जो आज इन्होंने एक कदम उठाया है, ये मैं समझता हूँ धीरे धीरे पूरे जितने भी हमारे पॉपुलेशन है पूरा कवर अगर हो जाए तो ये पता चले कि किसको कितना क्या गंभीर मसला है, शुरुआत में क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा सर। सबसे पहले जैसे आपने कहा MRI के लिए हमारे यूपी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, उसमें एक किस्म का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। पहले हमने 1.3 टेस्ला कर लिया था, हमारे लिए अच्छा हुआ, बहुत बार कैंसिल होते होते हम अब मॉडर्न वाले पे 3 टेस्ला पे पहुँचे। उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो पहले एडवाइज़र के नाम से जाना चाहते थे, और हमारे एक्स एलजी साहब और हमारे जो एक्स हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर साहब थे, उन सब की कोशिशों से, और आपके अभी फंड रिलीज कराने में सर आपने का भी बहुत बड़ा रोल है। हम आपकी और यूटी गवर्नमेंट के पूरा शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने ये जो हमारे लिए एक सपना था वो पूरा होने जा रहा है। जहाँ तक बिल्डिंग का आप बता रहे थे सर, ये बिल्डिंग वाकई में हमारे लिए खूबसूरत बिल्डिंग बना है, जिसमें हमारे बहुत अच्छे डेडिकेटेड डॉक्टर्स, डेडिकेटेड पैरामेडिक्स काम करते हैं। मैं आपको बताऊं तो हमारे ये R&D वाले बड़ा इसके जो बाहर वाले कंपाउंड वाली को ना बहुत बड़ा ऊंचा कर रहे थे, फिर मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा हमारे करगिल में दिखाने के लिए ही अच्छा बिल्डिंग है, आप उसको भी छुपा रहे हो। फिर जाके उन्होंने आधा कम कर दिया। मतलब मेरा कहने मतलब सर ये बहुत अच्छा एक बिल्डिंग बना है।
तो बिल्डिंग ही नहीं है, हमारे यहाँ पे सर्विस भी उतना अच्छा है, खूबसूरत है सर, जितना बाहर से बिल्डिंग हमें दिखाई देता है। जहाँ तक हमारे कुछ रिक्वेस्ट है सर, जैसे हमारे एमपी साहब ने भी कहा कि डॉक्टरों की कमी तो हम सब जानते हैं, तो इंशाल्लाह जो हमारे मेडिकल अफसर उनका तो जल्दी हमारा कमी पूरा होगा सर। हमारे एनएचएम में जैसे ले में आपने दिया है सर, कार्डियोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट वगैरह, और उसमें हमें ये न्यूरोलॉजिकल ये सर न्यूरोलॉजी में एक सर्जन चाहिए सर, सुपर स्पेशलिटी का, जो खासकर हमारे लिए करगिल में ऐसा है। करगिल आप जानते हैं ले से भी 230 किलोमीटर के आसपास है, और करगिल श्रीनगर से भी 205 किलोमीटर। तो हमारे लिए सर ये प्राइमरी केयर यूनिट भी है हमारा अस्पताल, सेकेंडरी भी और टर्शरी केयर खासकर सर्दियों में। तो इस वे टू ऑटोमेट सर। फिर कुछ डिमांड आप लोग जानते हैं कि हमारे जो 100 बेड के सर 1979 में जितने आपके बेड्स जितने आपके स्टाफ सेशन हो गए थे 1979 के बाद, सिर्फ सर 2011-12 में जब आपके यहाँ पे ट्रामा अस्पताल आ गए थे, उसमें 10-20 स्टाफ इंक्रीज हो गए थे। उसके बाद बिल्कुल भी 1979 से जब से अस्पताल बना है तब से स्टाफ स्ट्रेंथ वही है। तो आप लोगों से गुजारिश है कम से कम सर 200 बेड का ये अस्पताल होना चाहिए। और साथ में हमने यहाँ पे हमारा एमटी स्कूल है, उसको हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। वो एनएचएम में एक प्रोग्राम भी है, उसके हिसाब से एमटी स्कूल को एक कॉलेज नर्सिंग कॉलेज बनाने का, उसमें भी आप लोगों का मदद की जरूरत है सर। फिर और जहाँ तक हम ये ह्यूमन रिसोर्स का हमने कहा सर, उसमें बहुत सारे जगहों पे हमें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नहीं, बहुत सारे जगहों पे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। और सर और एक चीज हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है सर, अगर हो सकता है तो हम चाहते हैं एक मिनी एम्स जैसा 50 बेड का 30 बेड का एक मिनी एम्स यहाँ पे कायम किया जाए। क्योंकि अगर हम जानते हैं सर ले में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, मगर वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि 230 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ से भी अब जोजरापुर गया थोड़ा सा हमारे यहाँ से कमी हो जाएगा, मगर फिर भी सर एक मिनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ होगा तो हमारे जितने भी इश्यूज है वो उसमें कैटर करने में हमें मदद मिलेगा। जो उपस्थित डॉक्टर मोहम्मद जफर असम साहब, जो हमारे सीसी दाखिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल की, और पवन कोटवाल जी हमारे IAS चीफ सेक्रेटरी, श्री मोहम्मद हनीफा खान जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट, श्री राकेश कुमार जी IAS हमारे डिप्टी कमिश्नर, श्री राम राघवन जी IPS SSP कारगिल, शेख नजीरुल मेहदी प्रेसिडेंट जनरल आचार्य कारगिल से, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स डॉक्टर लियाकत CMO कारगिल, डॉक्टर पवन कुमार सिंह ग्रुप डायरेक्टर यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा से, डॉक्टर अनुज मलिक सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, यहाँ से हमारे उपस्थित कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के वॉलंटियर्स और अल रजा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन कारगिल से हमारे सभी उपस्थित नर्सिंग स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हमारे कर्मचारी। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस कैंसर जांच जागरूकता कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। ये शिविर जो बताया गया कि अल रजा हेल्थ केयर और रिसर्च फाउंडेशन कारगिल द्वारा यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन स्वास्थ्य विभाग कारगिल के सहयोग से जो आयोजित किया जा रहा है, इसका नेतृत्व यथार्थ टीम के पवन कुमार सिंह जी कर रहे हैं, जो ग्रुप डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अनुज मलिक सीनियर कंसल्टेंट हैं, वो भी यहाँ पर आई हैं। इस कार्यक्रम का एक अपने आप में महत्व है। मुझे जो पहले बताया गया कि लद्दाख में इस प्रकार की जो डॉक्टर पवन कोतवाल जी ने बताया, इस प्रकार की यहाँ की धूप के कारण से, यहाँ से और कारणों से यहाँ पर जो कैंसर लोगों के बीच में आता है, तो उसका शुरू से ही स्क्रीनिंग और इलाज किया जाए तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। इसलिए जो लद्दाख की हमारी जो टीम है हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, मैंने देखा कि काफ़ी डेडिकेशन के साथ काम करते, तो इस चीज़ को हम जड़ से खत्म करें।
इसके लिए अल रजा का तो एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है ही, लेकिन स्थानीय डॉक्टर जो सेवा भाव से यहाँ पर काम करते हैं तो उनके अभी मैं सराहना करता हूँ। ये अपने आप में एक परिवारों को तो बचाता ही, आशा दिलाता है, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम करें, इसके लिए एक बहुत जरूरी है। जो आज की निःशुल्क यहाँ पर जांच कार्यक्रम चल रहा है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत से लोग इसका लाभ भी उठा पाएंगे। और क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अर्थात जो एक गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे लोगों को उसका लाभ मिले। कैंसर स्क्रीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआती चरण में ही अगर इसका इलाज कर लिया जाता है तो मुझे लगता है उसका फायदा रहता है। नहीं तो हम नित्य प्रति देखते हैं जिस प्रकार से हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब बता रहे थे कि किस प्रकार से जब शुरुआत में ये चीजें नहीं पकड़ी जाती तो वो लोग हमारे रिलेटिव भी रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं, वो हमको छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए विशेष करके इस प्रकार की जो जानलेवा बीमारी है उसको शुरू से ही हम अगर पकड़ें तो मुझे लगता है कि उसका फायदा हो सकता है। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है जीवन के लिए आज जो कैंप लगेगा तो जीवन के लिए आशा जगाने में मदद करेगा। और जो क्लिनिक में जो बताया गया कि अल रजा कार्यालय कतिलगाह में अपने सैटेलाइट क्लिनिक जो स्थापित किया है, जो कारगिल जिले में रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। अब हम डॉक्टर किसी रोगी में कैंसर रोग का पता लगाने और निदान में संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ द्वारा आसानी से परामर्श कर सकते हैं। ये एक अच्छा कदम है। मैं निश्चय ही आने वाले समय में ये लद्दाख तो इसके अलावा अल रजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन इस सहयोग को प्राप्त करके प्रसन्न है, क्योंकि यह संगठन 2017 में स्थापना के बाद से नियमित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है ताकि समाज के योग्य वर्ग को लाभान्वित किया जाए। इस संगठन का उद्देश्य और लक्ष्य जो नीचे बताए भी गए हैं, और अलग अलग से कैंपों का आयोजन करना, गरीब लोगों का मदद करना, जिला अस्पताल में कारगिल के रोगियों के लिए नियमित रूप से रक्तदान शिविर वगैरह इस प्रकार के जो कार्यक्रम लिए जाते हैं, मुझे लगता है कि धार्मिक संस्थाओं का एक अपना महत्व रहता है। और अल रजा जिस प्रकार से काम कर रहा है इसके लिए मुझे लगता है कि ताली बजाने की जरूरत है। तो आगे से इसी प्रकार से समाज में काम करते रहें तो मुझे लगता है कि कारगिल को बहुत फायदा हो सकता है। और कभी यहाँ जो MRI मशीन की बात की गई थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे पूर्व जो LG साहब है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो मेरी जानकारी है कि वो मशीन श्रीनगर पहुंच चुकी है और जल्द ही यहाँ पर आकर के वो इंस्टॉल होगी तो उसको लोगों का फायदा होगा। और भी जो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल की जो बात 200 बेड के लिए की गई है, उसके लिए ऑलरेडी हम इसके लिए प्रयासरत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ की सुविधा है जो हमारे कारगिल और लद्दाख में मिले, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हुआ कि आपने जो आयोजन किया है, मैं डॉक्टर्स का, अल रजा का, सभी जो यथार्थ हॉस्पिटल का सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। मुझे भी कुछ डॉक्टर्स ने जम्मू से भी ऑफर की जो कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में हैं या न्यूरो के क्षेत्र में हैं, हम ये भी प्रयास करेंगे उनको महीने में 1-2 दिन यहाँ पर ला करके भी वो अपने मर्जी से यहाँ पर आना चाहते हैं तो हम उसको उनका सहयोग अगर ले पाएँ तो मुझे लगता है कि हमारे कारगिल के लिए बेहतर होगा। और नामी डॉक्टर हैं वो, तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये आयोजन जो आज का जो कैंप है वो सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग लाभ उठा पाएँ। आगे से भी इसी प्रकार आप सेवा कार्य में लगे रहेंगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमी की वजह से मैं इंशाअल्लाह बहुत ही मुख्तसर अल्फाज के साथ आप लोगों का अलविदा करता हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारे इस दावत पे। अल रजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए
और हमारे लिए बाइस से मुसर्रत है और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप जैसे शख्सियात आके इस प्रोग्राम को रौनक बख्शना और साथ ही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पवन कुतवाल जी और हमारे सीसी साहब, एमपी साहब और हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे यात्रा के डॉक्टर साहिबान और बाकी काउंसलर्स और यहाँ सीएमओ साहब, बाकी हमारे डॉक्टर साहिबान, आप सबका बहुत ही मशकूर, बहुत ही ममनून हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज का हमारी ये प्रोग्राम करगिल में एक वाहिद प्रोग्राम है जो आज तक नहीं हो पाया था। कैंसर का ये स्कैनिंग प्रोग्राम जो है आज के बाद इंशाल्लाह हमारे अलविजा हेल्थ केयर और हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के ताउन से जारी व सारी रहेगी। इस तरह के प्रोग्राम हमारे पब्लिक के लिए, आवाम के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। जैसे कि हमारे सभी मेहमान अजीज ने यहाँ आकर कहा, इस तरह के प्रोग्राम हमारे लिए हर साल अलविजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत होता रहता है और होना चाहिए। मैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे एलजी साहब से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये जो हॉस्पिटल यहाँ पर खड़ा है, इसका असली नक्शा जो है दोनों तरफ से सेम, इस तरफ भी एक बिल्डिंग था, उस तरफ भी एक बिल्डिंग था और इस हॉस्पिटल का सिर्फ एक ही बिल्डिंग यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हॉस्पिटल का जो असली नक्शा है उसके उस साइड में भी सेम इसी तरह एक बिल्डिंग है, ताकि इस हॉस्पिटल का असली जो स्ट्रक्चर है वो सामने आ जाए। उसमें इस चीज को हज़फ किया गया है और इससे हमारे आइंदा आने वाले दिनों में पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छी सहूलियत फराहम की जा सकती है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत बातें थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत ही अपनी बातों को समेट रहा हूं, बहुत ही कम करने की कोशिश कर रहा हूं। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, सीसी साहब, एमपी साहब और हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, बाकी मेहमानान अजीज और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की वजह से हमारा आज का ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो यहाँ एलजी साहब हैं जो Thank you, sir. With that, I would like to request His kind self, Honorable Lieutenant Governor Shri Kavinder Ji, to present mementos to our Member of Parliament, Haji Hanifa Jan, Chief Executive Councillor Dr. Jafar Rafoor, दोनों हाजी साहब को है सर, दोनों हाजी साहब के लिए, मैं यार दो तो worthy Deputy Commissioner Shri Rakesh Kumar, Doctors of Yatharth Super Speciality Hospital. ये दोनों साहब के लिए, एसपी साहब के लिए On behalf of Al Raza Health and Research Foundation, a memento is presented to Yatharth
Super Speciality Hospital. ये यथार्थ की तरफ से शेख साहब के लिए I like to call Dr. Pawan and Dr. Not too sweet. नहीं ठीक है, इनका तो ये करने यही है ना, और कुछ नहीं है। तो इनका वो MSD वालों का अगर नंबर चाहिए होगा तो वो हम दे दें। ठीक है सर, MSD का है, आप लोगों का जी जी हमें दे देना, हम कनेक्ट करेंगे, फिर पेशेंट से हम संपर्क कर लेंगे इनको ना। हाँ ये नंबर कुछ नोट चाहिए, नोट चाहिए आता लेने जा चाहिए। बीमारी तो है, पेशेंट को मैंने बड़ी ऑपरेशन के बाद जो है कि मतलब मुझे थोड़ा आपका वो ऑपरेशन का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, वो दिखाइए। आप रिकॉर्ड अपना इधर उधर रखा हो ऐसे कि आपका मई में ऑपरेशन हुआ और जून में उनके हिसाब से बीमारी वापस आ गई, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। कुछ मत बंद करिए। ऑपरेशन के बाद कोई आपको आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल कुर्बथा में यहाँ पे अलविज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन करगिल कोलेब्रेशन विद यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कैंसर अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम का यहाँ पे इनाग्रेशन यहाँ पे किया गया। तो इसके यहाँ इस मौके पे जो हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख श्री कविंदर गुप्ता जी और हमारे ऑनरेबल CC यहाँ पे डॉक्टर जाफर आफून सर यहाँ पे मौजूद थे, हमारे ऑनरेबल MP यहाँ पे हनीफा जान सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल और हमारे डिप्यूटी कमिश्नर SSP, बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे डॉक्टर्स हमारे सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। आज का यहाँ पे जो कैंप हुआ है अलविज़ा हेल्थ केयर रिसर्च फाउंडेशन करगिल और यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक्सटेंशन नोएडा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे जो LG साहब ने यूटी लद्दाख ने इनाग्रेशन जो किया है, जो ब्रेस्ट ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर को लेके इसमें कैंसर अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम यहाँ पे हमने जो फेस महीना में हमने यहाँ पे शुरू किया है। तो आज के जो प्रोग्राम है खासकर इसमें हमारा OPD बेसिड यहाँ पे पेशेंट्स जितने भी होंगे उनको यहाँ पे OPD में चेकअप किया जाएगा और जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स होंगे ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के, इनका यहाँ पे इनिशियल टेस्ट की तरफ से इनका यहाँ पे एक स्क्रीनिंग हो जाएगा। स्क्रीनिंग में इनको यहाँ पे जो भी जिसको भी खुदा न खादा अगर वो कैंसर का या अगर कोई इलामत या कोई सिम्टम्स उसमें निकलता है तो इन सबको
यहाँ पे इनका जल्दी ही यहाँ पे इलाज हो जाएगा, जितनी जल्दी हो जाएगा। कैंसर में खासकर बताया जाता है अर्ली इंटरवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। इसमें जल्दी हम इनको जल्दी इलाज कराएंगे, तो उसका हमारा मकसद है। हमारे ये जो प्रोग्राम है वो फेस मैनर में होंगे और हर हफ्ते या हर महीने के बाद हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे स्क्रीनिंग, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को पॉपुलेशन से हाई रिस्क ग्रुप्स को हम ले लेंगे, इसमें टेस्ट वेस्ट करके इनका स्क्रीनिंग करके इनका डायग्नोज करेंगे और कोशिश करेंगे जो फाइंड आउट करने के बाद इनको जल्दी इनका ट्रीटमेंट हो जाए, हमारा मकसद है। तो इसके साथ मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में आज एक कैंप ऑर्गेनाइज कराया इन कोलैबोरेशन विद अलरेजा हेल्थ केयर फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन। तो अलरेजा की टीम ने पूरी मदद करी है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी मदद करी है हमारे ये कैंप को सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च एंड प्रॉपरली प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आप सब लोगों को हमारे तरफ से मैं एक थैंक यू देना चाह रही हूँ कि प्रॉपरली आप इस कैंप को हमें हेल्प करा इस कैंप को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में। एक्चुअली हमारी ये मोटिव है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको डायग्नोस नहीं होता है कि एक्चुअल पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या ट्रीटमेंट ओपिनियन चाहिए एंड फर्दर स्टेजिंग क्या है पेशेंट की, स्पेशली कैंसर की, क्योंकि कैंसर ऐसा एक बीमारी है अगर स्टेजिंग पता नहीं चलेगा तो इतना ज़्यादा फैल जाएगा तो वो जानलेवा भी हो सकती है। तो इसीलिए हमने ये एक प्रयास लिया कि ऑलरेडी कोई पेशेंट को अगर ऐसा कुछ सिम्टम है या डायग्नोसिस की ज़रूरत है तो यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन फ्री निःशुल्क ये कैंप ऑर्गेनाइज करा है। आगे जाके हम लोग और भी स्पेशलिटी में काम करेंगे। यहाँ के यूटी लद्दाख में जितना धीर गति से आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की जो भी बीमारी है बढ़ रहा है, ऑलरेडी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये चीज़ के ऊपर अखिला दिखाया है। तो अगर ये चीज़ को हम लोग अभी से प्रिवेंशन मोड पे लेके जाएंगे तो आगे जाके हम लोग यूटी लद्दाख के सारे रेसिडेंट को एक कैंसर फ्री एक एरिया गिफ्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी वैक्सीन के बारे में वो बोल रहे थे। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एंड बाहर कुछ ऑलरेडी वेंडर्स है जिनके थ्रू यहाँ पे कुछ इंजेक्शंस वगैरह आ रहे हैं ब्लड कैंसर्स के लिए, स्पेशली एक्यूट ल्यूकेमिया के लिए। तो वो जो इंजेक्शन है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। तो हमारे डॉक्टर्स ने एंड हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ अरेंज करा है कि दिल्ली से ये इंजेक्शन यूटी लद्दाख में डायरेक्टली पहुँचे एंड हाफ ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे पेशेंट को उस चीज़ के लिए भी मदद हो। जितना ऑलरेडी फिनेंशियल हम लोग इनको मदद कर पाएंगे आगे जाके हम लोग करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन की तरफ से। थैंक यू सो मच। देखिए, इस पर पहले ही काम चल रहा है और वहाँ तो 200 की डिमांड हुई है लेकिन अब 300 कह रही हमारे पहला फेज में 200 मिला करके यहाँ पर जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो सभी प्रोवाइड की जा रही है। आने वाले समय में जो 27 करोड़ की लागत से यहाँ पर MRI मशीन भी दी जा रही है। आज का जो कैंप था यथार्थ और अलरजा के और यहाँ की जो हमारा लोकल हॉस्पिटल है उनके सहयोग से हुआ है। मुझे लगता है लद्दाख में जिस प्रकार से कैंसर एक हमारे लिए चैलेंज है उस पर इन्होंने बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और इसमें हमारे सभी जो लोग हैं इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे CEC साहब, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, सभी के सहयोग से इस प्रकार की जो आयोजन होते हैं आने वाले समय में भी लद्दाख कारगिल को हम विशेष सुविधा दे सकें, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा।